Hello everyone, welcome to another video of comprehensive biology learning. Today we are going to understand the respiratory system of human beings in detail. If you are new to this channel, make sure that you watch all the videos from the beginning ताकि आप लोगों के concepts शुरुआत से ही clear हो जाएं. In the previous video we have talked about respiration एज अ प्रोसेस. हमने ये जाना था कि ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ह्यूमन बींग्स आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. इट मीन्स वी परफॉर्म रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब क्योंकि हम लोग एरोबिक हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ होने के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म की ज़रूरत है. The intake of oxygen, that is inhalation, and the giving out of carbon dioxide, that is the exhalation, takes place in a particular system which is known as the respiratory system. Respiratory system is defined as a set of simpler parts or organs which combine together for the process of exchange of gases between the external environment and our body. So respiratory system के parts जो हैं वो बहुत ही simple होते हैं. We have been learning it since our primary classes. Respiratory system starts with our nose, that is the nasal passage, and it goes till pharynx. Pharynx is the common junction for डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसी में माउथ भी ओपन होता है. देन pharynx लीड्स टू larynx. larynx इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. इट हैज़ गॉट vocal cords जो वाइब्रेट होते हैं जिसकी वजह से वी आर एबल टू प्रोड्यूस साउंड. Larynx continues into a short tube which is known as trachea. Trachea is covered by ringed cartilages. ये जो lines यहाँ पे दिख रहे हैं ये ringed cartilages हैं. ये cartilage इसीलिए ज़रूरी है because if there is no air in the trachea, it can collapse. So for maintaining the structure, for maintaining the body of trachea, उसको ringed cartilage दिए गए हैं ताकि वो collapse ना करे. Larynx के बाद trachea आता है and trachea opens into two pipes which are known as bronchi. Bronchi are further divided into smaller pipes which are known as bronchioles, and bronchioles end up into small balloon-like structures which are known as alveoli. जब एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है, इट एंटर्स फ्रॉम नोज एंड गोज स्ट्रेट अवे फ्रॉम ऑल दीज पाइप्स टू द लास्ट एंड विच इज़ नोन एज अल्वियोलाई. अल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है. यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया जाता है एंड ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में रिलीज़ कर देता है. दैट कार्बन डाइऑक्साइड अगेन मूव्स आउट फ्रॉम अवर नेसल पैसेज बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. Alveoli are small balloon-like structures. They are meant for gaseous exchange. Alveoli को जो structure होता है वो balloon-like structures जैसे होते हैं और ये जो है main place है जहाँ पे gaseous exchange होगा. Alveoli की जो wall होती है, जो outer surface होता है, it is richly supplied with blood vessels. इसका मतलब उसकी wall पे बहुत सारे blood vessels होते हैं और alveoli का जो wall होता है वो बहुत ही thin होता है, so that oxygen and carbon dioxide can easily move from the capillaries to the alveoli and vice versa. Alveolar surface has blood vessels. Oxygen and carbon dioxide are exchanged by the process of diffusion. Diffusion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस मूव करती हैं. कहाँ से? जहाँ पर उनका अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे उनका अमाउंट कम है. अब क्योंकि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली द ऑक्सीजन विल गो फ्रॉम अल्वियोलाई टू ब्लड. एंड बिकॉज द ब्लड हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी फूड का ब्रेकडाउन चलता रहता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम ब्लड टू द अल्वियोलाई. सो जो गैसेस हमारे लंग्स में आते हैं इट फाइनली गोज़ इनटू द अल्वियोलाई एंड फ्रॉम अल्वियोलाई द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. Blood carries oxygen with red colored pigment that is known as hemoglobin. अब ब्लड को जो ऑक्सीजन अल्वियोलाई से मिल रहा है वो उसे बाकी पार्ट्स तक कैसे लेके जा रहा है? एक रेड कलर्ड पिगमेंट के थ्रू जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं.
जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड स्टेट विद द ब्लड, वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है एंड देन इट इज़ पास्ड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स एंड फाइनली आउट इनटू द एयर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक लेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट है बिलो द लंग्स दैट इज़ नोन एज डायाफ्राम। डायाफ्राम इज़ अ लेयर ऑफ मसल्स दैट प्लेज अ ग्रेट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्योंकि ये एक मस्कुलर लेयर है, इट कैन ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, वो फ्लेक्सिबल होगा। तो जब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब वो पीछे की ओर नीचे की ओर खींचेगा, तो ऑब्वियसली लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगा एक्सपैंड करने के लिए। व्हेन द लंग्स विल एक्सपैंड, एयर विल ऑटोमेटिकली एंटर द नोज एंड फिल द अल्वियोलाई, दैट इज़ नोन एज इनहेलेशन। मगर जो डायफ्राम है वो ज़्यादा देर तक ऐसी पोजीशन में नहीं रह सकता, सो इट हैज़ टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, सो इट विल अगेन मूव अप। जब डायफ्राम वापस ऊपर जाएगा, then the lungs will be suppressed, lungs दबेंगे, because the lungs will be suppressed, the air will automatically move out from the nasal passage. That is how inhalation and exhalation takes place in our body. I hope today's concept was clear to you. I'll see you in the next video. Thank you.